Hello everyone. Today we are going to discuss about the chapter Fundamentals of Anatomy and Physiology of Physical Education for class 11th. My dear viewers, in this chapter we will discuss about the anatomy, physiology, some systems, their importance, and the oxygen debit and second bit. So let's start from the word anatomy. What do you mean by anatomy? Anatomy से क्या समझते हैं? Anatomy is a branch of science in which we study the structure of the body. किसी लिविंग बीइंग की स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं एनाटॉमी. Then what is physiology? Physiology, logy means study. It's also a branch of science in which we study the functioning of the system or functioning of the organs. जो ऑर्गन है, सिस्टम है, वो कैसे फंक्शनिंग करता है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, दैट कम्स इन फिजियोलॉजी. Why we are studying or why we are discussing these anatomy and physiology in the physical education? In fact, in physical education, we have to participate in the physical activities. So, if you want to perform effectively in the physical education or in the physical activities, then your physical structure must be fit. Means your fitness level must be up to the level or up to the mark. There are a number of importance of anatomy and physiology in the physical education. First is knowledge gain. If you will discuss, if you will study, if you will go through the anatomy and physiology, then obviously your knowledge will come enhance. आपकी knowledge है वो बढ़ जाएगी. You can gain the knowledge. Next is prevents health problem. If you will study about the anatomy and physiology, then you will go through the system, you will go through the functioning of the organs, then you can make yourself aware about the health problems and you can keep yourself away from the health problems. So easily you can say that you can prevent yourself from the health problems if you will discuss or if you will study about the anatomy and physiology. Next point is understanding the body structure. Obviously, if you will study about the anatomy is a branch of science in which we study the structure of the body. So if you will study the anatomy, then you can understand the body structure. So this is another point. And next is improve the efficiency. If you get the knowledge about the anatomy and physiology, then obviously you can improve your efficiency by the side. जब किसी स्ट्रक्चर के बारे में, किसी की चीज़ के फंक्शन के बारे में समझते हैं आप, पढ़ते हैं आप, फिर उसका जो परफॉर्मेंस देते हैं, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि आप उसके माइनस पॉइंट्स और प्लस पॉइंट्स के बारे में समझ चुके होते हैं. So these are some basic points that helps to understand the anatomy and physiology, and that tells about that why we must read or understand the anatomy and physiology. Next point is the skeletal system. ये पॉइंट एकदम से कैसे आ गया? इनफैक्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कुछ सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया जाता है. देयर आर नंबर ऑफ सिस्टम्स इन अ बॉडी. हमारी बॉडी में कुछ मेन सिस्टम्स हैं जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, nervous system. Number of systems are there in our body. अगर इन सिस्टम्स के बारे में हम समझते हैं तो बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से हमें नॉलेज हो जाती है. देन अपनी फिटनेस लेवल को कैसे इम्प्रूव करना है, इन सिस्टम्स को कैसे इम्प्रूव करना है, उन चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है. इट बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आवर बॉडी डिमांड and to fulfill the demand, what kind of activities you have to do, what kind of fitness activities you have to do. So let's start from the skeletal system. Skeletal system क्या है? Skeletal system is a framework of bone. हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है इनफैक्ट, और जो बोन से मिलकर बना होता है, स्पेशली बोन एंड जॉइंट से, उसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. दो मेजर पार्ट होते हैं, टू मेजर पार्ट्स इन द स्केलेटल सिस्टम. फर्स्ट इज बोन, सेकंड इज द जॉइंट्स. There are number of bones are there. बहुत सारी बोन्स हैं.
एग्जैक्ट वैल्यू कहेंगे 206 है. There are 206 bones in our body. Some are long bones, some are short bones, some are flat bones, some are irregular bones, and some are the sesamoid bones. What are long bones? As you all know that femur is the longest bone in our body. Femur कहाँ होती है? थाई बोन जिसे हम कहते हैं. इट्स ऑल्सो नोन एज द थाई बोन. हमारे लोअर लिम्ब की जो बोन है थाई बोन, उसे हम फीमर कहते हैं. इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू रन टू वॉक. फीमर के नीचे ही होती है टिबिया फिबुला. इट्स ऑल्सो द लॉन्गेस्ट बोन. रेडियस अल्ना एंड द ह्यूमरस, these are the two another bone and these are the part of the upper limb. हमारा जो अपर लिम्ब है, हमारा जो हाथ है, जिसे हम कहते हैं हैंड, इसकी ये बोन होती है ऊपर ह्यूमरस, देन द रेडियस अल्ना. शॉर्ट बोन की अगर बात करें तो हमारी बॉडी का जो फेस है इसमें जितनी बोन्स हैं शॉर्ट बोन्स के अंदर आती है. हमारी जो फिंगर्स है, हमारा हैंड है, इसके अंदर जो बोन्स आती हैं वो शॉर्ट बोन्स के अंदर आती हैं. नेम क्या होंगे उनके? हमारे हैंड है, इसके जो बोन्स हैं वो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स कहलाती हैं. दीज आर द कार्पल्स एंड दीज आर द मेटाकार्पल्स. इसके आगे होती है कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स. उसके आगे होती है फेलेंजेस, जिन्हें हम फिंगर्स कहते हैं. दीज आर द फेलेंजेस. दीज ऑल आर द short bones. If you compare these bones with their foot, तो फुट में जो है वो आती हैं टार्सल्स, मेटाटार्सल एंड द फेलेंजेस. These are also known as short bones. फ्लैट बोन की अगर बात करें तो फ्लैट बोन हमारी स्टेरनम जैसे कि हमारी फ्लैट बोन है जो कि हमारे रिब्स को बीच में ज्वाइन करती है. इट्स अ फ्लैट बोन. इर्रेगुलर बोन की अगर बात करें तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा, जैसे हम स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, पीछे बैक बोन जो हमारी रीढ़ की हड्डी, comes in irregular bones. Then sesamoid bone, जिसे हमारा पटेला, हमारा जो नी है, नी का कैप है जो हमारा sesamoid bone के अंदर आता है. तो these are some kind of bones जो हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है उसको बनाने में, डेवलप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इज द जॉइंट्स. जैसा कि मैंने आपको बताया था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द स्केलेटल सिस्टम जो हमारा बोन्स और जॉइंट से मिलकर ही बनता है. अब जॉइंट्स जो है, जो हमारी जो बोन्स हैं, इनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं. इट प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल टू डेवलप द होल बॉडी फ्रेमवर्क. पूरी बॉडी का जो फ्रेम है, वर्क है, उसको बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कौन? हु? जॉइंट्स. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जॉइंट्स. फर्स्ट इज द इमूवेबल जॉइंट, सेकंड इज द मूवेबल जॉइंट एंड थर्ड इज द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. अब इन जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इमूवेबल जॉइंट्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इमूवेबल जॉइंट्स? सच काइंड ऑफ जॉइंट्स दैट कैन नॉट मूव. सिंपली वर्ड से अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? सच काइंड ऑफ जॉइंट्स दोस कैन नॉट मूव. फॉर एग्जांपल स्कल. स्कल जो हमारा है उसके अंदर भी जॉइंट्स होते हैं जिनको हम साइंटिफिक वे में कहते हैं स्ट्रेचर्स. बट दीज जॉइंट्स कैन नॉट मूव नहीं करते, बट एक स्कल के फ्रेमवर्क को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट इज द मूवेबल जॉइंट्स. सच काइंड ऑफ जॉइंट्स दैट कैन मूव, दैट कैन इजीली मूव. फॉर एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? शोल्डर में एंड द हिप, दो जगह होता है. तो शोल्डर का जॉइंट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. जो हमारे शोल्डर, जो हमारी ह्यूमरस है, इसको ये आगे एक बॉल में स्ट्रक्चर होता है, उसको एक शॉकेट के अंदर फिट होता है. वो इसका ओनली बिकॉज ऑफ दैट वी कैन मूव आवर शोल्डर इन एनी डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव करा सकते हैं. इस तरह को मूवेबल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं. इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. एज यू आर गेटिंग द नॉलेज रिगार्डिंग दिस बोन्स, जॉइंट्स, तो समझ में आ रहा है कि जॉइंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपको बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में. देन व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन यू मस्ट टेक दैट यू कैन कीप दीज जॉइंट्स और दीज बोन्स हेल्दियर. इनको कैसे ध्यान रख सकते हैं आप, हेल्दी रख सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, जिससे कि आपकी फिटनेस लेवल और आपकी परफॉर्मेंस दोनों ही इम्प्रूव हो. नेक्स्ट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स. सच काइंड ऑफ जॉइंट्स दैट कैन मूव स्लाइटली, अ लिटिल बिट. फॉर एग्जाम्पल कौन से जॉइंट जो स्लाइटली मूव करते हैं?
दिस मूव हिंज जॉइंट जो आपका एल्बो में होता है, नी जॉइंट, इसको हिंज जॉइंट कहते हैं। ये दोनों जॉइंट्स हैं, ये स्लाइटली मूवेबल है, दैट मीन्स दे कैन मूव इन ओनली सिंगल डायरेक्शन। इन बोथ डायरेक्शन यू कांट मेक एनी काइंड ऑफ मूवमेंट टू दिस पर्टिकुलर जॉइंट। इस जॉइंट पे आप किसी तरह का बोथ साइड मूवमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही होगा। बोन और जॉइंट्स मिलकर आप क्या चीज बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं, जो कि आपको बॉडी का मेन फ्रेमवर्क होता है। तो ये बॉडी का स्ट्रक्चर समझने के लिए ज़रूरी है। इन द फिजिकल एजुकेशन यू रिक्वायर अ सच काइंड ऑफ नॉलेज। इससे ज़्यादा डीप में जाने के लिए फिर बायो आपकी आ जाएगी, तो हमें उतना ज़्यादा भी इस फिजिकल के अकॉर्डिंग नहीं समझना है, बेसिक कंसेप्ट को समझते चल रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्केलेटल सिस्टम। ये स्केलेटल सिस्टम, इसका फंक्शन क्या है, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस सिस्टम। फर्स्ट फंक्शन इज अ सपोर्ट। हमारी बॉडी को सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, हु प्रोवाइड सपोर्ट, दिस स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड द सपोर्ट। इफ आवर बॉडी डोंट हैव द बोन्स एंड द जॉइंट्स देन वी कैन नॉट मूव। बॉडी क्या गिर जाएगी नीचे की तरफ, बिना बोन के कैसे आप वॉक करेंगे। मसल्स को कौन देता है, बेस कौन प्रोवाइड करता है, हु प्रोवाइड द बेस, skeletal system, bones। तो it gives us support to our body, shape देता है। Who gives the shape? The skeletal system provide the shape to our body, protection। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, किडनी है, हार्ट, इन सबको बचा रहा है कौन, skeletal system। कैसे, रिब्स plays an important role to protect our internal organs, act as a lever, लीवर की तरह काम कर रहा है। आपके लीवर तो क्या होता है, खुद एक ऑर्गन है, तो एक्ट एज ए लीवर कैसे काम कर रहा है। लीवर, यहाँ जो लीवर है, दैट लीवर मीन्स एनी टूल और एनी मशीन दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर, जैसे हैंड पंप, स्टेपलर, सीजर, दीज आर द लीवर्स। कोई ऐसी मशीन है, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमारे काम को आसान कर देते हैं, ईजी कर देते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम ऑल्सो वर्क्स लाइक दैट। इफ यू वांट टू पिक अप एनीथिंग then you will have to use your hands or your finger, and at that moment your fingers, your hands acts as a lever की तरह काम करेगा। उसने हेल्प किया, रोबोट जैसे काम करता है ना। आपने किसी चीज़ को पिक किया, स्पून को या पैन को, और उसके बाद जिस पर्टिकुलर प्लेस तक ले जाना है वहाँ तक उसने आपने ईजिली कैरी कर लिया। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम हेल्प कर रहा है। मैन्युफैक्चर ऑफ RBCs, बोन्स आर अ मेजर पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। मेन पार्ट है, मेजर पार्ट है। एंड बोन्स के 3 पार्ट होते हैं, हेड, शाफ्ट एंड टेल। तो उसका शाफ्ट बीच वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर बोन मैरो होती है। एंड बोन मैरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द RBCs। RBC मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, बोन मैरो में ही होता है। और RBC की जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो RBCs जो है वो जो रेड ब्लड कार्पल्स हैं, ब्लड का मेन जो पार्ट है, क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब ऑक्सीजन कैरी होगी बॉडी के अंदर, तभी बॉडी के अंदर एनर्जी का सिस्टम, एनर्जी का लेवल सफिशिएंट रहेगा और ऑप्टिमम रहेगा, और ओनली देन यू परफॉर्म बेटर। सो स्केलेटल सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज पॉइंट्स, सपोर्ट के लिए, शेप के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एज अ वर्क एज अ लीवर, एंड इट्स अ मैन्युफैक्चर ऑफ RBCs ऑल्सो। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्केलेटल सिस्टम की बॉडी में। तो वी हैव टू keep this in remember, the skeletal systems our body का फ्रेमवर्क बनता है। नेक्स्ट सिस्टम इज इम्पोर्टेंट सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। मोर देन 400 मसल्स आर देयर इन आवर बॉडी, और बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर पूरा बन रहा है, ऐसे कि फ्रेमवर्क जो बन रहा था हमारा भी स्केलेटल सिस्टम से, तो उसके ऊपर जो अपीयरेंस निकल के आता है वो मसल्स की हेल्प से आता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मसल्स, इट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल for providing the structure, but for the efforts also. How? Let's discuss about the functions of muscles. First is provide structure. It also helps, muscles also helps to provide the structure, to provide the manufacturing the structure of our body. Second, provide the efforts. अब skeletal system में एक bones है और 2 joints दोनों मिली हुई हैं. And if you want to pick up anything, then who will make the effort? कौन एफर्ट करेगा? बोन्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में, मसल्स।
मसल्स ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं ओनली देन द मूवमेंट हैपन्स. मूवमेंट होता ही तभी है. मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जॉइंट्स जो है वो वर्क करेंगे और बोन्स जो है वो आपस में एक दूसरे के पास आएंगे. जब आपस में आएंगे तो लीवर की तरह काम करेंगे. ओनली देन यू कैन वर्क. इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन. आपके मसल्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोवाइड करता है. तो बॉडी के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन पूरी मिल जाती है आपकी. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर सिस्टम, आल्सो विद द हेल्प ऑफ मसल्स. Now, if we will discuss about the types of muscles, then 3 types of muscles are there in our body. Simple, जैसा आपने पढ़ा भी पहले in the earlier classes. First is the voluntary muscles, second is involuntary muscles, third is the cardiac muscles. Now, the question arises, what do you mean by voluntary muscle? Voluntary muscles means such kind of muscles that works under your command. That is directly related to the CNS, central nervous system. Whatever kind of work you like to perform, you can perform only with the help of voluntary muscles. If you want to pick up anything, if you want to throw anything, then first of all you will have to think. Then your central nervous system will give the command, will give a message, will convey the message to a particular part of the body. Then at the particular point of the body, that particular muscles will either contract or they relax. Then only then the activity will be completed. Activity complete हो जाएगी. तो such kind of muscles that works with your will, आपकी इच्छा से जो काम करती है, those muscles are known as the voluntary muscles. Now what kind of muscles are involuntary muscles? Such kind of muscles that works with their own, जब मर्जी से काम करेंगे. They are directly related to the ANS, autonomic nervous system. जो आपका होता है, two kind of nervous system are there, central nervous system and the autonomic nervous system. So involuntary muscles are related to the ANS, autonomic nervous system. That means they work with their own. Blinking of eye, heart की beat होना, lungs, diaphragm, जो इंटरनल आपके ऑर्गन्स हैं, वो वर्क आपके कहने पे नहीं कर रहे हैं. आपने खाना खाया तो कहना नहीं पड़ता आपको अपने स्टमक से, इंटेस्टाइन, चलो भाई अब डाइजेशन स्टार्ट कर दो. दे वर्क विद देयर ओन. उन्हें पता है व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, क्या करना है, कब करना है. दे विल वर्क विद देयर ओन. वो अपने आप टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम स्टार्ट कर देते हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ मसल्स प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल टू फुलफिल दैट वर्क? इनवॉलंटरी मसल्स. थर्ड मसल इज अ कार्डियक मसल्स. It also comes under the involuntary muscles, or you can say the cardiac muscles are also known as the involuntary muscles. थोड़ा सेपरेट इसलिए करें कि on the basis of their structure they are different. उनकी appearance है, structure है, वो थोड़ा different है, but functioning are the same. दोनों की functioning जो है वो same. Cardiac muscles will work with their own too. वो भी अपने आप से, अपनी मर्जी से ही काम करती है. आपके कहने से आपका हार्ट काम नहीं करेगा. कब उसे हार्ट बीट करनी है, कब उसे ब्लड पंप करना है, द हार्ट विल वर्क विद देयर ओन. दीज आर सम टाइप्स ऑफ मसल्स. नेक्स्ट सिस्टम इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कि आपके पास आता है ब्रीदिंग, जिसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं. दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन. इज इज इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन आवर बॉडी. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग से, इसमें आपका इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेल करना यानी कि सांस को लेना, एक्सहेल सांस को छोड़ना. इंटरनल रेस्पिरेशन मसल्स का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का मसल्स के साथ इंटरचेंज होना, दैट कम्स इंटरनल रेस्पिरेशन. वो इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर आता है, जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी से एडीपी में टूट जाती है, और आपकी जो मसल्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है, दैट कम्स विद द इंटरनल रेस्पिरेशन. नेक्स्ट सिस्टम इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और इसका जो मेजर ऑर्गन है दैट इज द हार्ट. जो क्या है, हार्ट है आपका मेजर ऑर्गन. अब हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर, इट हैज़ अ 4 चैम्बर, यू नोट वेरी वेल. 2 ऑरिकल होते हैं जिसमें एट्रियम भी कहते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं. एट्रियम आपके अपर पार्ट में होते हैं, वेरिकल लोअर पार्ट में
जो एट्रियम है वो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है। ब्लड जो है हमारी बॉडी से इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स में, वहाँ प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफाई होने के बाद वो आता है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू वो चला जाता है आपकी बॉडी के और पार्ट्स में। जो ब्लड आपको पंप करता है कौन सा ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि जो हार्ट के पास पहले ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, फिर हार्ट उसको भेजता है लंग्स के पास, फिर लंग्स से वापस हार्ट पे ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर वो हार्ट हमारा सप्लाई कर देता है। अब ये जो काम हो रहा है ये आर्टरीज और वेन्स के थ्रू होता है। तो आर्टरीज और वेन्स जो बाद में कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, इनका क्या फंक्शन है यहाँ पर? आर्टरीज जो है वो अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से अवे जाती है, एंड आर्टरीज ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही वो कैरी करती है। एंड वेन्स टूवर्ड्स द हार्ट, वेन्स ऑलवेज कैरी द deoxygenated blood except then the pulmonary vein। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे आर्टरी ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट एक्सेप्ट देन द पल्मोनरी आर्टरी। दो तरह की, एक तरह की आर्टरी ऐसी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और एक तरह की वेन भी ऐसी होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। तो जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वहीं पर इस तरह की जो फॉर्मेशन है कुदरत ने बनाई है, नेचर ने बनाई है, उसके थ्रू ये फंक्शनिंग पूरी होती है। अभी जो हार्ट है हमारा ब्लड को पंप कर रहा है, बार बार बात कर रहे हैं, हार्ट का काम क्या है? एग्जैक्ट पंपिंग द ब्लड, ब्लड को पंप करना, सर्कुलेट करना बॉडी के अंदर। तो ये दो पार्ट होते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं, दूसरा कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स इन अ सिंगल बीट हाउ मच ब्लड आवर हार्ट पंप। एक सिंगल बीट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, दैट इज नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड इन a single minute how much blood our heart pump, that is known as the cardiac output। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, एक मिनट वाले को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, एक बीट में जितना ब्लड पंप करता है दैट नोन एज a stroke volume। यदि ब्लड प्रेशर, वो क्या है? ब्लड प्रेशर मीन्स हमारा जो अपर पोर्शन लोअर पोर्शन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी कहते हैं, जो 120 और 80 mm/Hg होना चाहिए। Hg मीन्स मरकरी से कहते हैं। ये डायस्टोलिक सिस्टोलिक जो होता है ये बताता है कि ब्लड जो है हमारा बॉडी के अंदर किस तरीके से फ्लो कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ब्लड का प्रेशर जो है लो है या फिर हाई। इंपॉर्टेंट सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज द सेकंड विंड एंड द ऑक्सीजन डेबिट। ये शॉर्ट टॉपिक से छोटे से, इसकी डेफिनेशन है जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे क्या है सेकंड विंड और ऑक्सीजन डेबिट। इनफैक्ट व्हेनेवर यू परफॉर्म एनी एक्टिविटी और एनी वर्क, कोई काम करते हैं आप, तो आपकी बॉडी से जो ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है, मसल्स में जो ऑक्सीजन स्टोर है वो यूज़ होती है। जो भी ऑक्सीजन यूज़ हो रही है आइदर द रेस्पिरेटरी सिस्टम से आप जो इनहेल कर रहे हैं डायरेक्टली बॉडी के अंदर सप्लाई हो रही है और आप यूज़ कर ले रहे हैं। दूसरा होता है कि स्टोर्ड होती है जो मसल्स के अंदर, उसको यूज़ करते हैं। तो सेकंड वन क्या है? जब आप कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, तेज़ी से काम करते हैं, तो एक समय के बाद कि आपको थकान फील होती है, यू फील द टायर्डनेस, एंड एट दिस कंडीशन अगर आप थोड़ी देर और काम करें तो आपकी बॉडी जो है उस टायर्डनेस को ओवरकम कर लेगी और उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेगी और यहाँ पे काम करने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। दैट कंडीशन नोन एज द सेकंड विंड। तो सेकंड विंड इज द फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट। फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है व्हेनेवर यू फील टायर्डनेस, जब ज़्यादा आपको ऑक्सीजन की डिमांड की जरूरत पड़ती है तो उस ऑक्सीजन की डिमांड के साथ आपकी बॉडी का एडजस्टमेंट हो जाना, दैट इज नोन एज सेकंड विंड। एंड व्हाट डू यू मीन ऑक्सीजन डेबिट? जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी की जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, देन उस ऑक्सीजन का दोबारा से रिस्टोर होना, दैट इज नोन एज ऑक्सीजन डेबिट। यानी कि जो उधार ऑक्सीजन यूज़ कर लिया आपने बॉडी की, दोबारा से आपका सिस्टम पूरा वर्क करेगा और उस पर्टिकुलर पार्ट तक ब्लड पहुंचेगा, साथ में ऑक्सीजन पहुंचेगी और दोबारा से वो फुलफिल हो जाएगी, दैट इज नोन एज ऑक्सीजन डेबिट। एज यू ऑल नो दैट व्हेनेवर यू परफॉर्म एनी एक्टिविटी
एक्सट्रीम एक्टिविटी कोई कर लेते हैं आप तो बॉडी के अंदर पेन फील होने लग जाता है आपकी बॉडी के अंदर एक लिमिट के बाद। तो वाई दिस पेन यू फील, वाई यू फील दिस पेन, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं आपकी मसल्स, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं ऑक्सीजन, तो उसका पर्पज़ ये होता है, पर्पज़ ऑफ मसल्स टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड जस्ट कि आपकी बॉडी इंजर्ड ना हो जाए। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा तो थकान फील होने लगेगी आपको, कुछ है नहीं, बचा नहीं बॉडी के अंदर। यू विल टेक रेस्ट, जब रेस्ट करेंगे तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो चुका है वहाँ पर दोबारा से थोड़ी देर में सप्लाई पहुँचेगी ऑक्सीजन की, और उस लैक्टिक एसिड को क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी। जब लैक्टिक एसिड मेल्ट हो जाएगा दोबारा से एनर्जी रिगेन हो जाएगी उस स्ट्रेंथ वहाँ की। जब रिगेन हो जाएगी देन यू विल फील द अगेन एनर्जेटिक, दोबारा से फील करेंगे एनर्जेटिक। तो दोबारा से जो फील कर रहे हैं एनर्जेटिक, तो उसको एनर्जेटिक फील कराने के लिए क्या हुआ, वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँची, तो उस ऑक्सीजन का दोबारा से वहाँ पहुँचना और आपकी एनर्जी को रिगेन कराना, दैट इज नोन एज ऑक्सीजन डेप्थ। तो दीज आर सम few topics of this anatomy physiology related to the physical education. फिजिकल एजुकेशन के लेवल की रिक्वायरमेंट थी, वो टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।